Now, here the philosophy of the Constitution is given. So, philosophy of the Constitution means the values that inspired and guide our freedom struggle and were in the nurture by it form the foundation of Indian democracy. These values are embedded in the preamble of Indian Constitution. जो भी हम values philosophy की बात कर रहे हैं, all those are in our preamble. तो ये preamble you will see on the next page. This is given. This preamble you have to draw while you write the chapter. So preamble में सब कुछ है. Preamble क्या कहता है? They guide all the articles of Indian Constitution. Constitution begins with a short of statement, basic value. This is called the preamble. Constitution of the constitution taking inspiration from American model. Most of the countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble, and on this page same the preamble of the constitution of यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी दिया हुआ है और आपका ये साउथ अफ्रीका का भी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का जो है वो प्रियम्बल जो है वो आपके सामने ही है। सो लेट अस रीड द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन very carefully and understand the meaning of each of the word. Preamble the constitution read like the poem. ये एक हमारे constitution की poem जैसा ही है. It contains the philosophy which the entire constitution has been built. It provides a standard of examine and evaluate any law and action of government to find whether it is good or bad. It is the soul of the Indian constitution. So when you see the page number 51, you will find that all keywords are given and they have particularly depth of the you can say constitution, or in a short form they have been given here, like we the people of India having the solemn resolve to constitute India into the sovereign socialist secular democratic justice liberty equality fraternity. The meaning of all these words have been given here, so we will discuss separately them what are they. So let's see, like firstly that is we the people of India. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप enacted by the people through their representatives and not handed down to them by the king or any outside power. मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं कि हम भारत के लोग जो हैं क्या करते हैं? द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग को चुनते हैं और वो क्या है? नॉट हैंडेड डाउन दैम इन एनी किंग, मतलब हम चुनाव से अपना लीडर लेते हैं, ना कि हम किसी राजा के हाथ में या बाहर की पावर के हाथ में इसको जाने देंगे। मतलब दोबारा मोनार्की नहीं आएगी या फिर आउटसाइड रूल नहीं आएगा। फिर आपका सॉवरेन, सॉवरेन इज द दैट द पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक द डिसीजन ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। मतलब लोगों को फुल राइट है, सुप्रीम राइट है कि वो मतलब डिसीजन ले सकते हैं एज वेल एज द एक्सटर्नल मैटर और इंटरनल मैटर। तो नो एक्सटर्नल पावर कैन नॉट बी डिक्टेट गवर्नमेंट। तो सॉवरेन का मतलब हो गया बाहर वाला कोई हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकता। हम क्या है? अपने आप में सुप्रीम है, एक ये सुप्रीम लॉ है। Socialist wealth is generated socially and should be shared equally society. Socialist का ये प्रावधान देता है, प्रोविजन देता है कि गवर्नमेंट शुड रेगुलेट ऑनरशिप एंड और लैंड एंड इंडस्ट्री एंड रिड्यूस द सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटीज। मतलब सोशलिस्ट का मतलब होता है समाज में इक्वल ही चीज़ें रेगुलेट होंगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी होगा। ठीक है, ये नहीं है कि अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिकम मोर रिचर एंड अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिकम पुअरर। तो आप अभी भी कहेंगे कि ऐसा तो अभी भी है, नहीं। जनरली यू सी व्हेन गवर्नमेंट इम्पोज द टैक्सेस, so they are accordingly on the basis of income. How much you are earning, you have to pay the tax to the government. So secular means like when the law equally the law or religion are treated, so citizens have complete freedom follow any religion. There is no official religion. Government treats all the religion belief and practice with equal respect. सो मीन्स कोई भी रिलीजन एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं हो सकता, गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है, वो क्या है? वो सेकुलरली ट्रीट करती है, रिफ्लेक्ट्स द प्रैक्टिस ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन। अनदर है डेमोक्रेटिक,
form of government where people enjoy equal political right, मतलब सबके एक जैसे अधिकार है, and elect the rulers and hold them accountable. Government run according to the basic rules, मतलब कि सबको पॉलिटिकल राइट्स हैं, पीपल कैन इलेक्ट देयर रूलर्स, और जो वो इलेक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट शुड हैव द अकाउंटेबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड। द गवर्नमेंट रन अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक रूल, अपनी मर्जी से नहीं चलती, सम रूल्स आर फॉलोड बाय द थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। रिपब्लिक क्या है? हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, नॉट द हेरिडेटरी पोजिशन। पहले क्या होता था? ठीक है, वजीर या प्रेसिडेंट को हेरिडेटरी पोजीशन भी होती थी, अभी क्या है? ओनली दे कैन बी इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब जो आपका है, जैसे प्रोसेस तो इसका दूसरा है बट इलेक्शन होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं है, अदर देन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द ऑल एमएलएस एंड एमपीस। Justice, that is, justice cannot be discriminated on the grounds of the caste, religion, and gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work on the welfare of all specially disadvantaged group. ये आपको मैंने चैप्टर पढ़ाते भी बताया है कि जस्टिस एंड इक्वलिटी कैन नॉट बी, यू कैन से दे आर इंसेपरेबल, और जहाँ पर जस्टिस है वहाँ इक्वलिटी होगी, जहाँ इक्वलिटी है वहाँ जस्टिस होगा। तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट जो है किसी के साथ भी जो है मतलब क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, पार्शियलिटी नहीं कर सकती। Another, liberty. Liberty means freedom. So there are no unreasonable restriction on the citizen that why they think how they wish to express the thoughts and the way wish to follow the thoughts in action. मतलब जिसका जो है आपका कि अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा कुछ नहीं है सिटीजन्स पर आए, व्हाट दे थिंक, दे विश, दे एक्सप्रेस, जो भी वो सोचते हैं, अपने सोच विचार को, अपने इच्छाओं को उजागर कर सकते हैं। इक्वलिटी, ऑल वी आर इक्वल बिफोर द लॉ। ट्रेडिशन, सोशल इनइक्वलिटीज हैव टू बी एंडेड। गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, यानी सबको एक जैसा राइट देने के लिए गवर्नमेंट बाध्य है by the constitution. Fraternity, भाईचारा, brotherhoodism, ठीक है। all of us should behave if we are member of the same family, हम ऐसे behave करें कि हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। no one should treat the fellow the citizen as inferior, अपने आसपास किसी को भी छोटा ना समझे, ठीक है। इसको यहीं तक करते हैं, उसके बाद हम कंक्लूजन कर लेते हैं चैप्टर का इन दैट थर्ड वीडियो। ओके।